टेस्ट के हिसाब से डालेंगे. आप चाहें तो इसको बनाकर जो है आप किसी भी जार में रखकर फ्रीज कर सकती हैं. अच्छा ٹھیک ہے, تو اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. کتنے دن تک لگ بھگ؟ آپ 1 ویک تک آپ اس کو اچھا رکھ سکتے ہیں. اس کا کیا طریقہ آپ نے بتایا؟ اب جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ سب مکس کر کے ہم کسی بھی جار میں اس کو رکھ کر اور فریج میں رکھ دیں. اچھا تو اسی طرح سے. اوکے, کالا نمک ڈال دیا ہم نے, یہ بھی اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ. جی, اور پھر بادام. یہ بادام ہمیں اتنے ہی لینے جتنا ہم نے آم لیا. اچھا, ایکول کوانٹٹی بادام اور آم کی؟ جی, دونوں کی برابر ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو مکس کر کے اور سرسوں کے بیج سے جو ہے ہم اس کو بگھار لگائیں گے. تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے بادام کا تیل. ٹھیک ہے, بادام کا تیل آسانی سے مارکیٹ میں مل جی جاتا ہے؟ آسانی سے مل جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے, پھر ہم اس میں آئل ڈالیں گے. بادام کا تیل ہمیں بہت معمولی سا لینا. جی, اب ہم لیں گے سرسوں کے بیج. ٹھیک ہے, تیل گرم ہو چکا ہے شاید. اس میں ہم سرسوں کے بیج اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. آپ مجھے 1 اسپون اور دے دیجیے. دیکھیے فرائی ہو گئے. اب ہم ان کو اپنے سیلیڈ میں ڈالیں گے. اسے بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے. اب آپ چاہیں تو اس کو ساتھ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کھانے میں, اور چاہیں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں. جی. تو اب میں اس کو سرو کرتی ہوں. جی, سرو کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک سرونگ پلیٹ. دیکھیے کافی کلرفل لگ رہا ہے. جی. سارا جی, جو لوگ آم کا استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ کوئی اور بھی فروٹ ڈال سکتے ہیں, جیسے پپیتا یا کوئی اور؟ نہیں, پپیتے کو ہم اسٹور نہیں کر سکتے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آم کی جگہ ایپل جیسے ہوتا ہے سیب, آپ وہ لے سکتی ہو, یا کچا آم لے سکتی ہیں آپ. اچھا جی ٹھیک. پھر ہم تھوڑا سا یہ لیں گے اس کو گارنش کرنے کے لیے. تو ناظرین, بن کر تیار ہے آم کالی مرچ کا بادامی سیلیڈ. شکریہ سائرہ جی. تو لیجیے دوستو, ہمارا یہ مزیدار سیلیڈ بن کر تیار ہے. اگر آپ بھی اسے گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس کی ریسیپی نوٹ کر لیجیے. آم کالی مرچ والا بادام سیلیڈ بنانے کے لیے چاہیے لال شملہ مرچ, پیلی شملہ مرچ, آم, رائی, تیل, نمک, کالی مرچ, بادام, گاجر, دہی, ہلدی پاؤڈر اور تیل. آم کالی مرچ بادام سیلیڈ بنانے کا طریقہ: سب سے پہلے ایک باؤل لے, اس میں کٹے ہوئے آم کے ٹکڑے, شملہ مرچ, کالی مرچ پاؤڈر, کالا نمک اور بادام ڈال کر مکس کریں. پھر ایک پین میں تیل اور سرسوں کے بیج ڈال کر سیلیڈ میں چھوک لگا کر ایک سرونگ پلیٹ میں نکال کر سرو کریں. ناظرین, اکثر رسوئی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی شو پر ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی کا. سائرہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. دوستو, آپ نراش مت ہوئیے, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بس آپ کو اپنی ریسیپیز ہمیں بھیجنی ہوں گی. اپنی ریسیپیز بھیجنے کے لیے نوٹ کیجئے ہمارا پتہ. ہمارا پتہ ہے اکثر رسوئی 2E/12 3rd فلور, جھنڈے والان ایکسٹینشن, نیو دہلی 110055. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے responseurdu@etv.co.in.
دوستوں ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے یعنی سروت زہرا کو دیجیے اجازت. اگلی بار نئی ریسیپی کے ساتھ ہم جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعار. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر. وحدت پہ تیری حرف دوئی کانا سکے. وحدت پہ تیری حرف دوئی کانا سکے. آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین بی ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. سب سے پہلے نظر ہے ٹائلز پر. اتر پردیش میں بی جے پی کے طوفان کو صرف مسلمان ہی روک سکتے ہیں. ساودھان ریلی سے خطاب میں مایاوتی کی مسلمانوں کو رجھانے کی کوشش. مرکزی حکومت فساد مخالف بل کے نفاذ کے لیے سنجیدہ نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا الزام. جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدنی کے بیان کی چوطرفہ مذمت. مسلم ارکان پارلیمان نے کہا مدنی کی نظر راجیہ سبھا کی کرسی پر. جمعیت علماء نے بنایا پناہ گزینوں کے لیے بنایا مزید 51 گھر. ارشد مدنی نے کہا مزید 200 مکانات کا ہے نشانہ. اور مدھیہ پردیش میں ریاستی وقف بورڈ کا عجب حال. نہ چیئرمین ہے اور نہ گورننگ باڈی. املاک کی ہو رہی ہے بندر بانٹ. سب سے پہلے آج کی بڑی خبر. بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے یو پی ریلی میں خطاب کے دوران جہاں مخالفین پر سخت الفاظ میں تنقید کی وہیں مسلمانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ بی ایس پی کی حمایت کرے تاکہ اتر پردیش میں بی جے پی کو اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے. اتر پردیش میں بہوجن سماج پارٹی سربراہ مایاوتی نے ساودھان ریلی میں جہاں کانگریس بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بی ایس پی کی مکمل تائید کرے اور اپنا ووٹ نہ بٹنے دے تاکہ بی جے پی کے طوفان کو اقتدار میں آنے سے روکا جا سکے. مایاوتی نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ سچر کمیٹی کو پوری طرح لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام حقوق کی بازیابی کی جائے گی. یہاں کے مسلم سماج کے لوگ اپنا ووٹ بانٹنے کی بجائے اسے ایک طرفہ بی ایس پی کے ہی لوگوں کو بی ایس پی کے امیدوار کو دے دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہاں اتر پردیش میں بی جے پی بہت پیچھے چلی جائے گی اور ایسی استھتی میں پھر کیندر میں یہ پارٹی بہت آسانی سے اپنی سرکار نہیں بنا سکتی ہے.
اور ایسے حالاتوں میں یا ایسی استھتی میں اتنا ہی نہیں بلکہ پھر یہاں سمپردائک طاقتیں بھی کافی حد تک ضرور کمزور ہو جائیں گی. یہاں جاتی وادی ویوستھا و سمپردائک طاقتوں کے شکار لوگوں کے ارتھات دلت و آدی واسی ورگوں کے ہتوں کے ساتھ ساتھ مسلم ایوم अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों को भी ध्यान में रखकर यहाँ देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी पूरी ईमानदारी से लागू कराने की तरफ भी विशेष ध्यान देगी. मायावती ने मुजफ्फरनगर फसाद पर तबसरा करते हुए कहा कि फसाद ज़दागान की खाना बर्बादी के लिए सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं बल्कि मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, जिसने समाजवादी को खुली छूट दे रखी है. मायावती ने उत्तर प्रदेश में सदर राज के निफाज का भी मुतालबा किया. सांप्रदायिक दंगों व तनाव आदि की मार से तो मुजफ्फरनगर व शामली जिले के पीड़ित लोग अभी तक भी उभर नहीं पाए हैं, जबकि ऐसे हालातों में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए या राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदू मुस्लिम समाज में आपसी भाईचारा व सद्भाव पैदा करना चाहिए था. उत्तर प्रदेश का फिरकावाराना फसाद रियासती हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है. वो मुसलमानों को मनाने के लिए जहां नित नए हथकंडे अपना रही है, वहीं हुकूमत के मुखालिफिन को भी हुकूमत की दुखती रग हाथ आ गई है. ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज. मौलाना अरशद मदनी के बयान की 4 रोजाना मजम्मत हो रही है. मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुजफ्फरनगर का फसाद मुल्क के सबसे बदतरीन फसाद में शुमार किया जा रहा है, जिसने गुजरात के नस्लकुशी फसाद को भी पीछे छोड़ दिया है. लोगों का कहना है कि बात सिर्फ फसाद पर खत्म हो जाती तो किसी हद तक तस्लीम किया जा सकता था कि ये शरपसंदों की कारस्तानी थी, लेकिन फसाद के बाद हजारों पनाह गुज़ीरों के साथ भी हुकूमत का गैर मुंसिफाना रवैया ये साबित करने के लिए काफी है कि यूपी हुकूमत का असल मंशा क्या है. लेकिन जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वजीर आला अखिलेश यादव की कसीदा ख्वानी में मसरूफ है. रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब मानते हैं कि मौलाना का बयान मिल्लत को शर्मसार करने वाला है, जबकि रुकन पार्लियामेंट अली अनवर मानते हैं कि मौलाना की नजर राज्यसभा की कुर्सी पर है. तो ये चकल्लस मिलता है अलग बस्तियां बनाने का. बस्तियां बना के चंदा आता है, बस्तियां बनती हैं, चंदे होते हैं, हुकूमतें कुछ फायदा करती हैं. अगर उलमाए कलाम को सच में क़यादत का शौक था या सच में फिक्र और सोच थी, तो उनको चाहिए था कि यूपी की असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के सामने 10 लाख लोग बैठते और ये कहते जमहूरियत ने हमको हमारे मुल्क से उजाड़ा है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इनको छत नहीं दे दोगे. जहां ठंडक से बिलक बिलक के बच्चे मर रहे हों, जहां औरतें चिल्ला चिल्ला के कह रही हों कि मेरी दुनिया कहां गई, वहां आप इतनी जुर्रत कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो. मेरी समझ से इस सरकार ने बहुत निकम्मापन किया है और आने वाला इलेक्शन जमहूरियत में हम उसका हिसाब जमहूरियत से ही लेते हैं, इलेक्शन से लेते हैं और हम इंशाल्लाह जवाब लेंगे उनसे. ये आलिम लोग हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल अपनी सियासी कुर्सी पक्का करने में करते हैं कई लोग. तो उनके खानदान के कुछ लोग राज्यसभा पहले से पहुंच चुके हैं, अब ये नंबर में है, इनका नंबर है, तो इसीलिए शायद मुलायम सिंह जी इनको भेज दें, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं. लेकिन हम लोग सुनकर हुए हैं बयान पर क्या गुजरा है वहां के लोगों पर, और इस तरह की बयानबाजी करते लोगों को शर्म नहीं आ रही है. जमीयत उलमा के सदर अरशद मदनी ने मुजफ्फरनगर फसाद पनाह गुज़ीरों के लिए जमीयत की जानिब से बनाए गए मजीद 51 घरों की चाबियां इन्हें सौंपी. वादे है कि इससे कबल जमीयत की जानिब से 72 मकानात पनाह गुज़ीरों को बनाकर दिए गए हैं. इस मौके पर अरशद मदनी ने कहा कि हुकूमतें ख्वाह वो मरकजी हो या रियासती, वो अक़लियतों खासकर मुसलमानों के तहत संजीदा नहीं है. और उसकी इनायत से बेघर लोगों को 51 मकान की और चाबी दे रहे हैं. इस वक्त हमें ये अफसोस है और ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अगर मुल्क की सेकुलर सियासी जमातें
अपने वादों को जो अपने मैनिफेस्टो में करती हैं उनको पूरा करती हैं और मुल्क के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान जो दोहरे पैमाने हैं उनको न अपनाती तो आज आम आदमी पार्टी की शक्ल में कोई मुतबादिल पार्टी वजूद में ना आती और अगर वजूद में आती तो उसकी तरफ आम जनता अक्सरियत और अक़लियत के अफराद इस तरह न दौड़ते जिस तरह आज हमें दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम ये बात कहते हैं चाहे वो मरकजी पार्टियां हों, नेशनल लेवल पर हों या सूबाई लेवल के ऊपर हों कि 2014 में अगर मरकज और सूबों में वो चाहती हैं कि उन्हें कामयाबी मिले तो हर अक़लियत और खास तरीके पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना होगा। मुजफ्फरनगर के फिरक़ेवाराना फसादात ने जिन खानदानों को बेघर कर दिया और उन्हें खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, जमीयत उलमा हिंद पहले दिन से उसके लिए फिक्रमंद थी और हमने मुसलमानों के ताउन से 72 खानदानों के मकानात की चाबियां पहले मरहले पर सौंपने के बाद आज दूसरे मरहले पर 51 मकानात की चाबियां सौंप रहे हैं। और अगर हैदराबाद की तंजीम माइनॉरिटी राइट्स एंड लिबर्टीज फाउंडेशन के 5 रुकनी वफद ने मुजफ्फरनगर फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन के हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली आए वफद ने ईटीवी से बात करते हुए मुजफ्फरनगर के हालात को साजिश का नतीजा करार दिया। MRL फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने कहा कि वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने के बाद मरकजी और रियासती सरकार को भेजेंगे। हमने हमारे ये पूरे दौरे के ताल्लुक से हम जितने चीज हम लोग गैदर किए हैं उसकी बेसिस पे एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे जिसपे हम सारे जो है ना वहाँ के विक्टिम से जो हम बयानात लाए हैं उसको कलमबंद करेंगे और जो वहाँ की जो उनके जो है ना कंटेंशन से जो उनकी शिकायतें हैं पूरी उसमें लेंगे और वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर हम रिकमेंडेशंस लिखते हुए सारे जो है ना ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और जितने बड़े बड़े जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस है उन सबको इसको पहुंचा के उनसे जो है ना उसमें गुजारिश करेंगे जो है ना उसमें सिर्फ कार्रवाई की जाए और मुस्बत और एकदम परफेक्ट कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। ऐसी जो है ना मजबूत कार्रवाई की जाए कि जो है ना इस तरह के वाकयात फिर आइंदा किसी भी वक्त रुनवा ना हो पूरे हिंदुस्तान के अंदर। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग ना राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिवार महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। जमात इस्लामी हिंद के कौमी सेक्रेटरी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना रफीक कासमी इन दिनों नांदेड़ के दौरे पर है। नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर पर उलमाए किराम की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त में मौलाना ने सीरत रसूल के हवाले से इस्लामी माशरे की तामीर की अहमियत पर रोशनी डाली और मुसलमानों को अपने फर्ज मनसबी की अदायगी के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। मौलाना रफीक कासमी ने ETV से बात करते हुए इंसदाद फिरका वाराना बिल की मंजूरी में की जा रही ताखीर के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक शख्स ने मुतालबा किया, उनके साथ कुछ लोग आए और उन्होंने मुतालबा किया। रामलीला ग्राउंड में उन्होंने अनशन किया। जंतर मंतर पर पहुंच करके उन्होंने कुछ जिंदाबाद और मुर्दाबाद किया। एक शख्स एक तरफ है और 20 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से खुसूसन और दूसरी अकलियतों के ताल्लुक से उमूमन जो यहाँ फिरका वाराना फसादात या उनके हुकूक की पामाली की जा रही है उसको नजरअंदाज किया जाता है और जन लोकपाल बिल पास करा लिया जाता है। अगर ठीक उसी तरीके से संजीदगी के तई दोनों को एक अंदाज से महसूस कराया जाता तो जन लोकपाल बिल भी पास हो जाता और साथ साथ ये इंसदाद फिरका वाराना बिल भी पास हो जाता। लेकिन उसके ताल्लुक से वो संजीदा है, कर दिया काम। इस ताल्लुक से संजीदा नहीं है, इसलिए इस काम को नहीं किया उन्होंने। महाराष्ट्र के शहर जलगांव में आइंदा 22 और 23 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्किद होगा। बोर्ड के तासीसी रुकन मौलाना रफीक कासमी ने नांदेड़ में मीडिया को बताया कि इस इजलास में मुसलमानों को वो मौजूदा मसाइल जो बोर्ड के दायरे कार में है इस पर गुफ्तगू और फैसले लिए जाएंगे। सभी बच्चों का मतलब ये है कि कुरान हदीस और मजलिस आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मजलिस आमिला का इजलास जलगांव में होने जा रहा है 22-23 फरवरी को इंशाअल्लाह। वहाँ इस वक्त की जो सूरत हाल है मुल्क के सामने और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे कार में जो जो चीजें आती हैं उसे गौर फिक्र के लिए पेश किया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं या इसी तरीके से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जो मुकदमात हैं उनकी सूरत हाल क्या है, या इसी तरीके से और दूसरे जो मसाइल हैं उन मसाइल पर गौर किया जाएगा। उसके लिए उसका जायजा लेकर के आइंदा का मंसूबा बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने मजलिस शूरा पाचा दस्ती हरमैन शरीफैन के तहत शहर हैदराबाद में वक्फ की गई 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। इन जायदादों में मदीना एजुकेशन सोसाइटी के तहत स्कूल्स और कॉलेजेस चलाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मदीना एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इन जायदादों के तई मुसलसल बेकायदगियों की शिकायत और उस पर
हाउस कमेटी की रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड ने सख्ती से अमलावरी नहीं की। हाईकोर्ट की वक्फ बोर्ड से वजह तलब किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड ने इन 5 जायदादों को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। शेख इकबाल ने मदीना एजुकेशन सोसाइटी और इससे पहले तहवील में लिए अलाउद्दीन वक्फ बोर्ड के वक्फ के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाने का इरादा भी जाहिर किया है। क्या है कि वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर, तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 नवंबर। तो जब हमारे 25 नवंबर को एक 3 मेंबर कमेटी कुछ बनाएंगे इसको, ऐसा कुछ हमारे बोर्ड में रेजोल्यूशन है विच आई फील, फिर मैंने रिव्यू किया उसको, ये करेक्ट नहीं है एंड वी सेड ये तो वक्त के तहत ही आना चाहिए और बच्चों का तो एजुकेशन वैसे ही चलेगा। वो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वक्फ बोर्ड के इमलाक हो या दीगर मसाइल, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में न तो कोई चेयरमैन है, न ही बोर्ड की नई बॉडी की तश्कील हो पाई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। असेंबली इंतखाबात के सबब अकलियती इदारों की बॉडी तहलील कर दी गई थी और अब जबकि नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है, इसके बावजूद नई बॉडी की तश्कील नहीं हो पाई है। नई बॉडी की तश्कील न हो पाने के सबब किराएदारों को भी परेशानियों का सामना है। मुतल्लिका लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और चूंकि मामला वक्फ बोर्ड का है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रही है। 2001 के अंदर मैंने ताहिर अहमद अंसारी साहब से ये दुकान 3000 रुपए किराए पे ली, जो प्रेसिडेंट मूवमेंट के अंदर जो है 5000 रुपए किराया मैं अदा कर रहा हूं उन्हें। इसी बात को लेकर मेरा उनसे जो है दुकान खाली कराने के एतबार से विवाद चल रहा था। इसके लिए जो है मैं थाने कोतवाली जाकर आवेदन दिया, लेकिन वहां भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इब्राहिमपुरे से हमने सोचा यहाँ से अब देखते हुए दुकान की तरफ देखते हुए चले, वहाँ देखा तो वहाँ ताले तोड़कर हमारे सामने वो अंदर घुस गए ये लोग 40-50 लोग। और जैसे ही हमने कहा ये क्या हो रहा है, तो पीर जी की मस्जिद के सामने ही दुकान है साजिद बाजिद परफ्यूमर्स की, वहीं हम खड़ा हो गए, देखा ताले टूटे पड़े। हमने कहा ये क्या हो रहा है, धार हथियार थे उनके पास। हमने जैसे ही रोका तो हमारे ऊपर हमले करने के लिए आ गए, तो हमारी झूमा झपटी हुई उनसे। तो हम जैसे ही फौरन भाई को बुलाने गए, फौरन भाई को बुला के लेके आए, तो उसके अंदर हमारा 12-15 लाख रुपए का माल था। और जैसे ही भाई को देखा तो उनसे भी झीना झपटी हुई, तो फौरन लोड करके उन्होंने भाग गए। जरूरत इस बात की है कि नई बॉडी की तश्कील के साथ चेयरमैन का भी इंतखाब किया जाए, जिससे औकाफ की मिल्कियत का बंदर बाट भी रुक सके। ईटीवी न्यूज भोपाल। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे
और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।